Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very, very good evening and welcome to all of you to this wonderful webinar that promises to give us a new perspective to the new world that is emerging post-pandemic. Around a year ago, when we were dealing with the first wave of COVID, a few of us got together to think about how the world would change after the pandemic. We realize that there will be a drastic change in the way world will be seen. And there will be newer ways, newer skills, newer abilities that will be valued, and existing knowledge bases that will need to be changed, even some to be absolutely dumped. It was on this basis that we started what came to be known as ALIFS, the Academy for Life and Futuristic Sciences. After having started on educational courses, including Marx and Intellect, we now focused on entrepreneurial capabilities, because that is what will define the new world post-pandemic. Before I go ahead, I'd like to just share this video, which is a famous video of a bird left from the Burj Al Khalifa Tower. Once the bird's eye view, you can see the entire landscape looks very different. What we see Dubai as and what the bird sees Dubai as. And it is lost not knowing where to go. But unless it knows the changing landscape below it, unless it knows the destination, unless it knows what's going to change, it's very difficult to land at the right place. But that is the target that we need to know. And once it knows it, once you know it, you can easily home in, zoom down, and then reach the destination, quite like this particular eagle did. The purpose of this webinar is to give us a new perspective of how this world is going to change post-pandemic, and how can we, as entrepreneurs, as even wannabe entrepreneurs, prepare ourselves for this. Before I introduce our speaker for today, let me welcome our chief guest for today. Our chief guest is already present and he will be addressing us after the webinar. He is Janab Mohiuddin MKS. Janab Mohiuddin MKS is a certified safety professional who is currently based in Kuwait. He has more than 3 decades of experience and is part of the HSE corporate group at Kuwait Oil Company. Not only is he an accomplished professional, but he also plays multifarious roles in various social organizations. He has been president of the American Society of Safety Professionals in Kuwait, as well as is leading the Kuwait chapter of Association of Muslim Professionals. Apart from that, he is an advisor and well-wisher to several philanthropic trusts and organizations, not only in Kuwait, but also back in India. Thank you so much, Mohiuddin Saab, for joining us today, and we hope to hear from you at the end of this webinar. Now let me introduce you the main speaker for today, the person who will be giving us this big perspective, the changing landscape, and where our target, our destination shall lie. He is an IAS coach, a person who has taught the person who came second at IAS examination, UPSC examination in India, which is considered one of the most difficult examinations in the world. He is a person who's a great speaker. He can integrate several topics together and has a wonderful way to put it across to the audience. He is a YouTube celebrity, is not the right word, but a person who is watched a lot on YouTube and many people benefit from him. He is the co-founder of ALIFS, the Academy of Life and Futuristic Sciences. And his vision is very clear: to give a new perspective for the world based on his knowledge, research, and future predictions. Today, he will be sharing with us his perspective on the world post-pandemic. Ladies and gentlemen, please welcome the master trainer, the speaker par excellence, the one and only Janab Samir Ahmed Siddiqui.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। Respected friends from across the world, as we have registrations from more than 12 time zones around the world. My respected chairman, Janab Abdul Rahim Sahab, who was just speaking to all of you, he is himself the most learned person I had ever met in my life. Respected dignitaries, doctors, engineers, professionals who have joined us from across the world. Our chief guest for tonight, and we are so thankful from the bottom of the heart for him thereby giving us the consent to become the chief guest. Janab Muhyiddin Sahab MKS, who is the most learned authority when it comes to the jobs and the businesses of the future. His qualification is at most. Respected teachers here who are also sitting and the owners of different schools, and my dear students who are the future of this country, of this society, and of this community. Today's webinar is very important. मैं चाहता हूं कि आज रात को कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ जाए, and if you give me the next 50 minutes with utmost concentration, तो सवेरे अल्लाह से दुआ है कि your conversation starts changing and आपके conversation में, आपकी बातों में वो चीजें आए जिससे सचमुच आने वाली दुनिया को फर्क पड़ने वाला है. So without doing much ado, बहुत सारे लोग YouTube पे ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे 300 का कैपेसिटी यहाँ फुल है. So before I proceed, I only want to make a promise कि those people who could not enter this particular Zoom conference and are watching us on the YouTube, you can leave your questions there also, or if the seats are vacant here, you can join here, you can ask me question here also, or you can ask me question 24/7 on alifsacademy@gmail.com or on our helpline number. So now I do the prayer in front of Allah Rabbul Izzat that today's webinar shall be life-changing, because what I'm going to speak for the next 50 minutes, every word is very important. Today's webinar is for the dreamers. Today's webinar is for those people who want to understand the future, not only for themselves, but for their coming generations. Today's webinar is going to, if you understand it the way I want you to understand, then today's webinar is something that will give you the insight that you require for the next 5 years or for the rest of your life. So when I start today's webinar, I want you to be a dreamer or a curious mind or a nation builder or a learner for life, a businessman or the owner. कई बार ऐसा होता है कि when we become businessman and we rent a floor, हम एक फ्लोर को रेंट करते हैं and we start giving heavy rent, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है, a big chunk goes in paying those rents. तो कोई आकर हमको फिर समझाता है कि why don't you purchase this entire floor and instead of paying the rent, you go and pay the installments of the bank. That way, one day, this entire floor will be yours. तो हमको समझ में आता है, अच्छा, the advice is very logical. The advice is very sound. So instead of paying the rent, I shall purchase the floor and keep paying the installment. धीरे धीरे दुनिया का कैरियर ऐसे चेंज हो रहा है. Instead of applying for the job, why don't you create your own job? Because the jobs are shrinking, and we will see today how they are shrinking. So instead of applying for the job, why don't we create our own job in such a way that we become the job provider for others? And that is the only solution कुछ दिनों के बाद जो हमारे हाथ में रह जाएगा. स्टार्टअप नेशन हमने इसको नाम दिया है इस प्रोग्राम को, which will start after this particular webinar, इसलिए कि because
When the last time India was at its peak of GDP, 23.67% of the world GDP, in accordance with Angus Madison, the Dutch historian, और शशि थरूर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, 3 टाइम के एमपी भी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उनकी बुक में इसका रेफरेंस है कि इन द टाइम्स ऑफ औरंगजेब ये जीडीपी 27% तक चला गया था एंड द नॉमिनल जीडीपी वाज 24.67%, क्योंकि उस वक्त इंडिया में एक कल्चर था जिस कल्चर को आज वापस लाने की जरूरत है, एंड दैट कल्चर वाज कॉल्ड स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरल कल्चर. Entrepreneurial culture और startup nation के लिए the most important thing that we require is a change of mindset, and today's webinar is all about changing that particular mindset. So years of growing income inequality है. Today we will see all the facts and the figures. हम खुद भी महसूस करते हैं that in certain hands the wealth has become absolutely concentrated. और उसी के साथ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स भी चल रहा है. इसको पता करने के लिए द बेस्ट प्लेस टू गो इज द इंजीनियरिंग कॉलेज, वेयर वी कैन सी द पीपल who have taken good score in their exams, they are not getting the jobs because technology driven displacement of the job, which call it as automation, but automation is now gone to a next extent, जिसे कहते हैं कि white collar jobs are also getting replaced. White collar jobs, thinking jobs are now being given to machine. मैं आज आपको दिखाऊंगा directly from all the papers and the magazines कैसे white collar, the thinking job, the jobs that were based on not only mind or heart, even the gut feeling, जो machine के पास नहीं है, gut feeling वाले job, that is also going to the machines. And because of which there is a polarization in the society. एक गुस्सा है जिस गुस्से को मोड़ा जाता है, and the societal discord has occurred globally. पर फिर आया 2020 और 21 और उसने दुनिया ही बदल के रख दी. 2020 और 21 के पहले 2 साल पहले मैं आपसे कहता that some people from the 12 time zones will attend a webinar. पूरी दुनिया से लोग आएंगे in a seminar. आप हंसते मुझ पर. But see how the technology has become an integral part of our life. यहाँ पर 12 time zones से लोग बैठे हैं, हर प्रोफेशन से लोग बैठे हैं, एंड वी आर सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम. कुछ ऐसे है जैसे मैं आपके घर में आके बोल रहा हूं. दिस 2020-21 is will be known in the history for combined health and economic shocks. धीरे धीरे कोरोना की सेकेंड वेव जा रही है, बट द इकोनॉमिक शॉक्स धीरे धीरे अब वो पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, करंट अफेयर्स में उसको रिप्लेस कर रहे हैं. एंड ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द फ्री फॉल. The labor markets are completely disrupted. किसी को ये पता नहीं है कि 1.5 years पहले जो जॉब गया था वो जॉब वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. And it is not only particular about our country. ऐसा दुनिया की हर कंट्री में millions of individuals globally they have lost their livelihood, and millions are more at risk from this recession. वो रिसेशन जिसने दुनिया के हर रिसेशन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है. पर इस रिसेशन में एक चीज और हो रही है, क्वाइटली साइलेंट रिवॉल्यूशन इज गोइंग ऑन. इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, एंड देयर इज अ फर्दर ऑटोमेशन दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. तो आज हम यहाँ जो आए हैं, वी आर कम हियर फॉर अ रीजन. आज यहाँ पे दुनिया की सबसे पढ़े लिखे लोगों को हमने इकट्ठा किया है. मैक्सिमम बिलोंग्स टू दोज कम्युनिटी विच आर ऑलरेडी एट डिसएडवांटेज. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, शहरों और गांवों की सबसे गरीब कौम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है. सो एज एन इंडियन एंड देन इंडियन की सबसे पिछड़ी कम्युनिटी, कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर, एंड कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ, आवर जनरेशन, आवर मासेस इन ऑर्डर टू फेस दैट पर्टिकुलर चेंज. बहुत अच्छा कहते हैं कि यू गो एंड एम्ब्रेस द चेंज बिफोर द चेंज एम्ब्रेसेस यू फोर्सफुली. So I hereby show you the first very important thing जो pre-pandemic था, and then I show you post-pandemic क्या है. Pre-pandemic में only want to show you one poster जो हमारे दिलों पे छपा हुआ है. 7.67 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन, उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दे तो द लोअर बॉटम 3.6 बिलियन और ऊपर का 3.6 बिलियन आता है. नीचे के पुअरेस्ट हाफ के 3.6 बिलियन लोगों की सारी वेल्थ को कंबाइन कर दिया जाए
If we combine the wealth of all the 3.6 billion bottom half poorest people together, तो उनकी वेल्थ उतनी नहीं होती जितना ओनली 62 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड टेक कमांड द वेल्थ। सिर्फ 62 लोगों के हाथों में ये वेल्थ है जो नीचे के बॉटम हाफ के पास नहीं है। दिस इज प्री पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक ये और ज्यादा चेंज हुआ है, विच आई वांट टू शो यू। ये तो प्री पैंडेमिक, ये तो हम जानते हैं, बट हियर इज पोस्ट पैंडेमिक। 5 दिन पहले का एक पेपर कटिंग है आपकी स्क्रीन पे। गौतम अदानी, आपने ऐसी कमाई कभी नहीं सुनी होगी, कारून के खजाने के बारे में सुना होगा, पर ऐसा भी नहीं सुना होगा। गौतम अदानी एडेड ₹75 crore टू हिज वेल्थ every hour during the pandemic. And he may soon surpass Mukesh Ambani. He had already surpassed world's richest person, Amazon के मालिक जेफ बेजोस को उन्होंने ऑलरेडी पास किया। 75 crore per hour during pandemic. This is post pandemic. अब वो 62 वाला सोचिए एंड सोचिए कि अब कितना ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हुआ है। एट द सेम टाइम अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी है, स्केल का एक दूसरा छोर भी है, where the poverty has doubled in India in 2020. 2020 में पॉवर्टी डबल हुई है एंड इंडियाज पुअर, उनको एक अब नया वैक्सीनेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कोरोना वैक्सीन। उसे कहते हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट पॉवर्टी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक नया रिपोर्ट और आया है which says that the Indian Muslims they have the least chances to escape poverty. तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं स्केल के इस साइड, और ये लोग क्या नहीं समझ पाते स्केल के इस साइड, उसमें से कुछ हाइलाइट्स I would like to show you today so that we change our thinking and we start working in that direction. We find ourselves at a very defining moment. हम जो यहाँ पर हैं, हमारी वो नस्लें जो अभी नहीं आई, हमारा वो देश जिसने हमको इतना पाला पोसा है, वो सब हमारी तरफ देख रहे हैं बिकॉज द डिसीजन एंड द चॉइसेस दैट वी मेक टुडे वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होना चाहिए, वो बहुत सारी नॉलेज को क्यूरेट करके लिया हुआ डिसीजन होना चाहिए जिसमें गट, हार्ट और माइंड तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो। This will determine the course of entire generation, lives and livelihoods. And we need safety nets, no doubt, to protect the people from destitution. लेकिन दुनिया की कोई गवर्नमेंट भी जिस बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, they can't provide them with the safety net. हाँ, हम एक तरह का नया सेफ्टी नेट दे सकते हैं यहाँ पर। We can orient these displaced workers towards the jobs of tomorrow. जो जॉब गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, उनकी जगह एक नया जॉब आएगा जिसे कहते हैं जॉब्स ऑफ टुमारो। और उसी को समझने आज हम रात को बैठे हैं आराम से। मैं चाहता हूं कि ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट और कीमती हो, इसलिए यू हैव टू गिव मी दिस टाइम, बिकॉज हम नहीं कैच कर सकते अगर नहीं समझा हमने, एंड वी डोंट स्टार्ट एक्टिंग नाउ, वी कुड नॉट कैच बिकॉज ऑफ द इंटेंस स्पीड ऑफ डिसरप्शन। डिसरप्शन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि घर बैठे बैठे बाहर की दुनिया कब बदल जा रही है हमें पता भी नहीं चल रहा। These are the photographs जो हमारे दिलो दिमाग पे छप चुकी हैं। We saw this in every city of the world almost. ये बंद दुकानें, इसके डिस्प्लेस लेबर, इनका बढ़ता हुआ रेंट, ये बंद मार्केट्स हमने देखे, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी बहुत जोर से टूटी। At the same time, when this was happening, आपके स्क्रीन पे एक और न्यूज है, Amazon and Walmart, they raked billions during the lockdown. Amazon, Facebook and Apple, इनका जो सबसे रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, इट हैज कम ओनली ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और आपको ये न्यूज पढ़नी चाहिए जहां लिखा है कि Amazon पोस्ट बिगेस्ट प्रॉफिट एवर एट द हाइट ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक के हाइट पर उसने ऐसा किया। एक ऐसी कमाई की झलकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो शायद आप हिस्ट्री में आपने आज तक नहीं देखी और इसके बाद आप नहीं देखेंगे। Amazon ripped $11,000 पर सेकंड कमाया है, $11,000। इससे पहले हम देख रहे थे 75 करोड़ पर आवर, उसी की तरह है ये $11,000 पर सेकंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो इनकी ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं? क्या इनके प्रिंसिपल्स को हम आइडेंटिफाई करके हम अपने छोटे बिजनेस, छोटे रेस्टोरेंट या छोटी स्कूल में लगा सकते हैं? To make it a school that is very grand, to make it a restaurant that is very grand, or while using their principle, can we start a business? Is it the right time and the right opportunity to start an entrepreneurship?
और अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो किस तरह का माइंडसेट लेकर हम पोस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम में जाना चाहिए. ऑल दिस क्वेश्चंस आई प्रे टू माय लॉर्ड दैट आई एम एबल टू आंसर टुनाइट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये टाइमली इंसाइट टू रीओरिएंट यू टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ द वर्क, ये इस वेबिनार का सेकंड एडिशन है. फर्स्ट वेबिनार हमने किया था, उसके बाद वी लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्टअप नेशन. वो इतना मकबूल हुआ, उसे इतनी दुआएं मिली कि 98 एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम 16 कंट्रीज वो हमारे साथ 1.5 महीना थे फॉर दिस इंटेंस ट्रेनिंग. वो पहला एडिशन पूरा हो चुका. नाउ वी आर इन आवर सेकंड एडिशन. एंड alifs.org, जैसे कि हमारे चेयरमैन बता रहे थे, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द न्यू इकोनॉमी एंड द पॉसिबिलिटीज जो आने वाली है. देखिए, हम में से हर कोई मुड़कर पीछे जाना चाहता है उन अच्छे दिनों की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे दिन अब वापस नहीं आएंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. तो हमारे थिंक टैंक ने ये 4 रिपोर्ट आज रात को लेकर हम आए हैं. हमने लिंक्डइन की रिपोर्ट्स में से निकाला कि व्हाट आर द क्वालिटीज एंड द कैपेबिलिटीज एंड द क्वालिफिकेशन दैट द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग. लिंक्डइन के एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं इन द न्यू एज इकोनॉमी, हम यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं. कोर्सेरा की हमने रिपोर्ट निकाली, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. किस तरह का कोर्स करने के बाद इमीडिएट प्लेसमेंट हो रहा है. वर्ल्ड इज मूविंग, डेवलप्ड इकोनॉमी का जो व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स है वो किस तरफ मूव कर रहा है. इन ऑर्डर व्हाट कोर्सेस आर दे लर्निंग टू सर्वाइव एंड थ्राइव. फ्यूचर ऑफ वर्क, इसकी रिपोर्ट्स हमने ये एनालाइज किया है विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाउ द इकोनॉमी विल गेट रीसेट एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. और सबसे बढ़कर फ्यूचर फिट एआई, ये जो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, इनकी रिपोर्ट्स हमने ये एनालाइज किया अपने थिंक टैंक alif.org में कि विच आर द एरियाज विच आर गोइंग टू सी द ऑटोमेशन वेरी सून, which is going to see the automation very soon. And the window of opportunity जो मैं आपको आज दिखाऊंगा, आप सवेरे से उस पर एक्ट करना शुरू करिए, क्योंकि this window of opportunity is very short. एक बार चली गई तो वो वापस बहुत धीरे धीरे भी नहीं आएगी, बहुत फास्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत फास्ट क्लोज हो रही है. एंड देयर इज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर ये सेकंड वेव के बाद अल्लाह ना करे थर्ड वेव आए, अल्लाह करे कि थर्ड वेव जैसी कोई चीज ना हो, तो इकोनॉमी विल ओपन इन 6 months फ्रॉम नाउ. उस 6 महीने के बाद जब इकोनॉमी धीरे धीरे टेक ऑफ लेगी, वो दम घुटी हुई इकोनॉमी जो 1.5 साल से बंद है, that will be the time to grow an organization. If you want to grow an organization, your school, your restaurant, your shop, your small business, your idea, your dream, your hobby, your curiosity, उस दिन वो टेक ऑफ करे, इसके लिए जरूरी है कि उसकी थिंकिंग आज स्टार्ट हो. द थिंकिंग मस्ट स्टार्ट टुडे. 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में 26 इमर्जिंग इकोनॉमी से हम देखेंगे. एंड हियर वी स्टार्ट दिस एनालिसिस. सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में, दैट 43% ऑफ बिजनेसेस surveyed by the World Economic Forum, they indicated that they are set to reduce their workforce. उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करेंगे एंड दे विल गेट रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी. सो ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन दे आर ऑल सेट टू रिड्यूस देयर वर्कफोर्स. बहुत दिनों से हर एम्प्लॉयर, हर मैन्युफैक्चरर इस मौके की तलाश में था कि वो मास डिस्प्लेसमेंट कर सके और लेबर्स की जगह मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स से उसको रिप्लेस कर सके, क्योंकि मशीन्स को इन्फेक्शन नहीं होता, मशीन्स जो हैं वो तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं मांगती, मशीन्स जो हैं वो छुट्टियां नहीं लेती, और उनकी सारी सैलरी आफ्टर वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब वो वक्त आ गया है, वो मौका फराहम हुआ है. तो 43% people they are going to reduce their workforce due to technology integration. Second very important बात वो कहते हैं 41% plan to expand their use of contractual specialized task force. हम में से बहुत सारे लोग MNC में काम करते हैं, हम जानते हैं we were on the direct muster roll of one particular company. लेकिन अब जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं they are coming through contractors. That makes hire and fire easy. तो कॉन्ट्रेक्चुअल टास्क फोर्स से आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे जिस इकोनॉमी में पैर रखेंगे वहां भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल टास्क फोर्स ज्यादा रहेगी. और लिंक्डइन ने हमको बताया कि
These are the jobs which they are seeking, and these are the jobs which have become redundant. नीचे के jobs redundant हो चुके, किसी को नहीं चाहिए अब ये दुनिया में. ऊपर के jobs के लिए dearth of human resource है, मिल नहीं रहे हैं आसानी से, इन्हें ढूंढा जा रहा है बेतहाशा. कैसे लोग हैं ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट. क्यों चाहिए ये? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से मिला के पढ़िए. यहाँ पे लेबर को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना है, 43% बिजनेस कह रहे थे. तो रिप्लेस करने के लिए आपको एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, डाटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट चाहिए जो डाटा में से मीनिंग निकाल के बताएं, हाउ टू बूस्ट द सेल. ये दो जॉब इस समय पूरी दुनिया में हाईएस्ट रैंक है, लेकिन इसका ह्यूमन रिसोर्स इतनी आसानी से नहीं मिल रहा. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसकी भी डर आई हुई है. लेकिन सबसे बढ़कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, एक छोटा सा बिजनेस जो एक लैपटॉप या एक कमरे से शुरू किया गया, अगस्त आते आते या नवंबर आते आते एक धमाका होने वाला है जिसे हम 5G रिवॉल्यूशन कहते हैं. उस दिन जब ये वेबिनार होगा तो मैं अपने लैपटॉप के सामने नहीं बैठा हूंगा, मैं आपके कमरे में बैठा हूंगा, एंड यू कैन सी अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मी इन योर ड्राइंग रूम एज इफ आई हैव कम ऑल द वे टू मीट यू एंड टू कन्विंस यू. इस तरह के फिनटेक इंजीनियर्स, यानी पूरे कॉमर्स को जो मशीन लर्निंग से लगा दें, इस तरह के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर्स की डर्थ है. लेकिन जिस तरह की पढ़ाई अभी हम अपने स्कूलों में करवा रहे हैं, बच्चों को जिस भविष्य के लिए हम तैयार करवा रहे हैं, लिंक्डइन कहता है कि वो जॉब्स रिडंडेंट हो रहे हैं. उसका एक एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज. ये जॉब जाने वाला है क्योंकि सेक्रेटरी से अच्छा काम एक स्मार्टफोन करने लगा है. जनरल एंड ऑपरेशंस मैनेजर, असेंबली एंड फैक्ट्री वर्कर, डाटा एंट्री क्लर्क्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स खत्म हो गए हैं. आर्किटेक्ट विथ अ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मशीन्स बाय यूजिंग द इनपुट वो उससे अच्छा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बना रही हैं. So these are the jobs which are becoming redundant and these are the jobs which are becoming very high. लेकिन हम किसी तरफ जा रहे हैं, पता है वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस. इस पर लोगों ने इतना भरोसा किया हुआ है कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. एक कंपनी आई हुई है आजकल इंडिया में, क्रेड. इस कंपनी का पूरी दुनिया में इसलिए नाम हो गया है, टू बर्न द कैश. इन्होंने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर 360 करोड़ का लॉस उठाया है, ओनली टू मेक एडवर्टाइजमेंट. ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बदले में लोगों से कुछ नहीं ले रहे. आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इट्स लाइक अ रिलायंस जियो मॉडल. 1.5 साल 2 साल सब कुछ फ्री करके रखा हुआ है, डिसरप्शन लाया हुआ है. अभी तो ये मनी बर्न कर रहे हैं, लेटर ऑन दे प्रॉमिस कि 6 मंथ के अंदर हमने जो भी बर्न किया वो वापस आ जाएगा. आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस वर्ल्ड में हम पोस्ट पैंडेमिक पैर रखने जा रहे हैं. क्रेडिट हमसे से सारे लोग जानते हैं, लगभग सभी, कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है. आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेके घूमना नहीं है, अपने फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, एक बार अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स डालिए, एंड जस्ट एट द आउटलेट यू डिसाइड किस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, एंड रस्ट द क्रेड विल डू एवरीथिंग. ये आपकी लेट पेमेंट्स का भी हिसाब रखता है, हिडन चार्जेस के बारे में बताता है, एंड द क्रेड इज योर पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंट. 727 रुपीज बर्न करता है, तो 1 रुपया भी वो वापस कमा रहा है. लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि आने वाली जमाना में वो सिर्फ 6 मंथ में ये पूरा प्रॉफिट वापस ले लेंगे. उनसे पूछा यार कैसे, समझ तो नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा कि देखिए, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का क्या मतलब होता है? वो जिनके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है. ऐसे लोग कितने होते हैं? पूरी इकोनॉमी में 1% रिचेस्ट, जो दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनके क्रेडिट कार्ड और स्पेंडिंग हैबिट्स का डेटा हमारे पास है. उनके उनके एसेट का डेटा हमारे पास है, उनकी परचेसिंग हैबिट का डेटा हमारे पास है, रिचेस्ट 1% के. और कितने हैं वो रिचेस्ट 1%? तो सिर्फ इंडिया में इनके 30 लाख डाउनलोड हुए हैं. ये कहते हैं कि अगर हम 1200 रुपया साल का, यानी 100 रुपया महीना भी इनसे ले लें, जो कि अब हम इनकी हैबिट बन गए हैं, देन 360 करोड़ रुपीस वो एक क्वार्टर में हम वापस ले लेंगे. दिस इज द पावर ऑफ द डेटा. बाद में इनका प्लान है कि वी विल कन्वर्ट आवर कंपनी इनटू अ बैंक फॉर रिच. और बाद में इनका एक और प्लान है दैट
We are going to manage the wealth of this richest 1%. एक डाटा से एक कंपनी को क्या क्या हो सकता है, दिस इज द बेस्ट प्राइम एग्जांपल, एंड दिस इज आल्सो एन एग्जांपल व्हाट वर्ल्ड आर वी एंटरिंग इनटू. बहुत सारे सर्च इंजिन्स, बहुत सारे ई कॉमर्स, बहुत सारी ऑनलाइन पब्लिशिंग, बहुत सारा रिक्रूटमेंट, बहुत सारा डेटा का एनालिसिस, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें एक साथ आने लगी, बहुत सारी चीजें एक साथ. एंड बाय यूजिंग इट पूरी दुनिया से जॉब्स वो डिसरप्ट होने वाले हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. आपके शहर में एक स्ट्रीट होगा जहां पे फार्मेसी बहुत ज्यादा होंगी, मेडिसिनल शॉप्स बहुत ज्यादा होंगी. ऐसे स्ट्रीट होंगे आपके शहर में. मैं आपको एक राय देता हूं कि आप भी वहां एक फार्मेसी खोलिए, बट यू कलेक्ट द डेटा ऑफ द पीपल हु कम टू यू. आप बाकी फार्मेसीज की तरह मत करिए, यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा. जिस दिन मैं आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आऊं और मैं महीने की 30 दवाएं लेकर जाऊं, लेट योर कंप्यूटर नोटिफाई कि मैं किस दिन आया था दवा लेने, कितनी दवा ले गया, किस दिन वो खत्म होगी. एंड बाय एन एसएमएस आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर दवा खत्म हो गई है तो क्या एक पत्ता और भेज दूं. एंड इफ आई ओनली प्रेस यस, बाकी सारे फार्मेसी का वो चला जाएगा बिजनेस, एंड ओनली योर फार्मेसी विल गेट. लेकिन ऐसा करते करते एक दिन आएगा कि उस पूरे इलाके के हर दवा खाने वाले का डेटा वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होगा, वो आपकी एआई एप्लीकेशन में स्टोर होगा. उस दिन आपकी भी फार्मेसी बंद हो जाएगी. पहले आपने सारी फार्मेसीज बंद कर दी, उसके बाद आपकी भी फार्मेसी बंद हो जाएगी और उसकी जगह एक छोटी सी मशीन आएगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये एक मशीन है जो फार्मेसीज को रिप्लेस करेगी आज से 5 से 6 साल में. यहाँ पर सबका डेटा है, आपको सिर्फ अपना आना है यहाँ पे और एक प्लास्टिक के बॉटल को यहाँ लगाना है. उसके बाद ये दवा का प्रिस्क्रिप्शन पहले से स्टोर्ड है, तो आपको अपना फिंगरप्रिंट थंब इंप्रेशन देके कंफर्म करना है कि आप ही वो हैं. एंड देन इट विल मेक ऑल द टैबलेट्स विल बी टेकन इन वन बॉटल, और वो बॉटल आप लेकर जा सकते हैं. 24/7 ये कियोस्क काम करेगा. आप 10 टैबलेट का पत्ता खरीदते थे, 5 खाते थे, 5 आप फेंकने में जाती थी, ये आपको 5 ही देगा, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज. बस आपको आना है, अपने थंब का इंप्रेशन लगाना है, एंड ऑल दी मेडिसिन विल बी पैक्ड इन दिस पर्टिकुलर बॉटल. एक दिन ऐसा आएगा कि सारी फार्मेसी से रिप्लेस हो जाएंगे. क्यों? ये रात को 3 बजे 4 बजे आपके इलाके का पूरा डेटा, आपने कौन सी दवा खाई है पिछले 8 साल में, यहाँ के डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, ये पीछे इन कंटेनर्स में भरा हुआ है. All you have to do is upload your prescription, give your thumb impression, and everything will be taken and given to you as per the doses prescribed. तो ये वक्त है एक ऐसी फार्मेसी का जो डेटा को कलेक्ट करती हो, कस्टमर से इंटरेक्ट करती हो, एक रिपोजिटरी बनाती हो. बट विद इन 5 to 7 years देयर विल बी अ रिवॉल्यूशन. और ये रिवॉल्यूशन ऐसा है जो सारी फार्मेसीज को ही खत्म कर देगा. हमने ऑनलाइन रिजर्वेशंस को खत्म होते देखा है, हमने इंटरनेट कैफेज को खत्म होते देखा है, पर वो दिन दूर नहीं व्हेन इवन दी आफ्टर पैंडेमिक इसकी ज्यादा जरूरत है. वो दिन दूर नहीं दैट इवन द फार्मेसी एंड द मेडिकल शॉप्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पोस्ट पैंडेमिक एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है. ये एडीपी फ्यूचर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है. क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एंड ई कॉमर्स ये पहले से ज्यादा बड़ा होने वाला है, बिकॉज पीपल हैव अंडरस्टूड दैट लॉकडाउन में एक ही चीज सर्वाइव कर सकती है. क्या मैं अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकता हूँ? यस. द आंसर आर 3: क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, ई कॉमर्स, एंड ऑल ऑफ देम आर सेल्फ रीइंफोर्सिंग. इसीलिए एक नए तरह के इंजीनियर की डिमांड उठी है. लिंक्डइन कहता है एनक्रिप्शन एक्सपर्ट्स चाहिए. अगर आपने इंजीनियरिंग की और आपको जॉब नहीं लग रहा, तो कोर्सेरा कहता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है एनक्रिप्शन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिप्लोमा के लिए, और नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए. ये 3 ऐसे फील्ड है जिस भी बच्चे को इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं है, अगर वो इसका एक छोटा डिप्लोमा कोर्स कर ले, देन दे इमीडिएटली विल बिकम एम्प्लॉयबल. So automation and COVID-19 recession, they are creating a double disruption. और ये double disruption लॉकडाउन में has become exacerbated. ये बहुत बढ़ गया है. लेकिन
जितना डिसरप्शन आएगा ना उतने जॉब्स जाएंगे, ये एक डर है। दिस इज द करंट व्यू ऑफ सिचुएशन। एक और थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं बेटर व्यू ऑफ सिचुएशन। तो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं विच विल चेंज योर व्यू एंड चेंज योर माइंडसेट एंड ओपन योर माइंड फॉर दैट। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें ताकि मुझे भी फीडबैक मिले दैट यू आर लिसनिंग। कैन यू कैन यू प्रेस द रेज हैंड बटन सो दैट आई कैन टेक यू फॉरवर्ड। तो वहां पे एक रेज हैंड बटन होगी, अगर आप उसको प्रेस करते हैं सो आई कैन फर्दर कंटिन्यू एंड विद इन द नेक्स्ट 40 minutes इंशाल्लाह वी विल चेंज आवर आउटलुक फॉर ऑल दिस। can you please yes, thank you so much everyone। अब डिसरप्शन से, क्लाउड कंप्यूटिंग से, एआई से डरने वाली बात थी आज तक, दैट many jobs are going to go away। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं which will change your mindset that many jobs are even going to come back। वो वापस आने वाले हैं। ये देखिए एक वीडियो। हम में से हर इंसान ने जिंदगी में एक बार ये सोचा है दैट आई वांट टू राइट अ बुक। फिर एक सेकंड ख्वाब आता है कि मेरी बुक इतनी मशहूर हो जाएगी कि मैं अपना डे जॉब छोड़ दूंगा। वो बुक लिखना कितना अच्छा था, क्योंकि मुझे बुक लिखना आता है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है। लेकिन उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता था। हाउ टू फाइंड अ पब्लिशर, हाउ टू निगोशिएट द रॉयल्टी, क्या परसेंट मुझे मिलेगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा। करते 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 आप थक जाते थे। बिकॉज यू आर अ स्टोरी राइटर। आप बिजनेसमैन नहीं है, आप स्टोरी राइटर है। तो आप कहाँ जाओगे ढूंढने, कहाँ, किस पब्लिशर के पास जाओगे। तो हमारी लिखी हुई किताब हमारे टेबल पे डस्ट खाती थी, हमें पब्लिशर नहीं मिलता था। लेकिन एक नई चीज हो गई है। अब आप अमेजन पे जाइए, डायरेक्ट किंडल पब्लिकेशन के नाम से, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। आप पहले अपनी बुक का डिस्क्रिप्शन लिखिए, फिर उसका सब्जेक्ट और जॉनरे लिखिए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को एड्रेस करती है, सो दैट एआई विल हेल्प यू टू फाइंड अ कस्टमर। उसके बाद आप अपनी पूरी बुक टाइप करिए। टाइप करके जैसे ही पूरी हो तो एक बटन है वहां पर, आप उसको पब्लिश करिए। जैसे ही पब्लिश दबाएंगे आपकी बुक प्रिंट होके किंडल एडिशन में दिखने लगेगी बिटवीन द अदर ऑथर्स। लेकिन ये सबसे खूबसूरत बात है, आपने जिस सब्जेक्ट पे वो बुक लिखी है उस सब्जेक्ट की बुक ढूंढा किस किसने है, इसका डेटा अमेजन के पास है। तो द मोमेंट यू कंप्लीट दैट बुक, कैरियर्स ऑफ द फ्यूचर एंटर, जैसे ही मैंने अपनी बुक पब्लिश दबाई तो कैरियर्स ऑफ द फ्यूचर के लिए जो जो कभी अमेजन पे आया था किताब ढूंढने, उनको इसकी एडवर्टाइजमेंट चली जाएगी। क्या पता अगर आपकी बुक में इतना दम हो कि पहले रिव्यू को पढ़कर, पहले प्रीफेस को पढ़कर, पहले बुक डिस्क्रिप्शन को पढ़कर एक रात में अनहोनी हो जाए, 12,000 किताबें बिक जाए। एंड दिस इज विदाउट पब्लिशिंग, विदाउट फाइंडिंग एन एडिटर, विदाउट फाइंडिंग अ पब्लिशिंग हाउस। सिर्फ थोड़ी सी समझ से वी कैन कमांड द चेंज। और उसमें फिर क्या है पता है, क्योंकि बीच में कोई वो नहीं है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, तो 70% रॉयल्टी का आपको मिलता है। आज तक किसी भी पब्लिशिंग हाउस ने 70% ऑफ रॉयल्टी कभी राइटर को नहीं दिया। 70% ऑफ द रॉयल्टी आपको मिलता है, 30% विल बी केप्ट बाय द अमेजन। हाँ, पब्लिशिंग हाउसेस बंद हो गए, हाँ प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हो गई, हाँ उनके जॉब्स चले गए, लेकिन उस राइटर का फायदा हो गया। क्यों? एआई ने हेल्प कर दी उन कस्टमर्स के हाथ में उन बुक पहुंचाने में, और एआई ने हेल्प कर दी लोगों के मूड के हिसाब से आपका सेल बढ़ाने में। दैट्स द पावर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अगर हम समझ सकें तो इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं। आई होप यहाँ पे जितने यंग माइंड्स मुझे सुन रहे हैं, जितने स्कूलों के मालिक मुझे सुन रहे हैं, जितने रेस्टोरेंट ओनर्स मुझे सुन रहे हैं, सबके दिल में ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है दैट वी कैन कमांड द चेंज। अगर समझ में आ रही है तो क्या एक बार और हाथ उठा सकते हैं जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाए? Now I take you to the second very important thing, दोस्तों। Tonight is a very important night of changing our mindset। मैं चाहता था कि दुनिया का हर इंसान इसको अटेंड करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पर एक दिन ऐसा होगा इंशाल्लाह, जब आप किसी को बताएंगे तो आपके जरिए वो लोग ये बात समझेंगे। एक नई पैटर्न आया मार्केट में ड्यूरिंग द दिवाली एंड ईद। लोगों की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं रही तो दे आर प्रेफरिंग टू गिव द चॉकलेट गिफ्ट्स। कैडबरी, किटकैट, नेस्ले, हर कोई चॉकलेट का गिफ्ट ला रहा है, तो फिर मैं आपका क्यों खरीदूं? तो एक नई चीज लेकर आया है किटकैट, जो मेलबर्न के एयरपोर्ट पे लगी है, एंड वेरी सून वी मे सी इट बीइंग कॉपीड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल। आप वॉकिंग करिए अमेज़न, आप वॉकिंग करिए इस पर्टिकुलर किटकैट के शॉप में, एंड
you pick your chocolate, then you pick the 3 ingredients of the recipient, जिसको पसंद है, जिसके लिए आप वो चॉकलेट पैक कराना चाहते हैं, उसके 3 फेवरेट चीज उसमें डाल दीजिए. देन यू डिजाइन योर बॉक्स विथ योर बैकग्राउंड. आप बैकग्राउंड पे उसको बॉक्स को डिजाइन करिए. देन यू गिव अ नेम ऑफ द पर्सन यू वांट टू गिफ्ट, जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं. एंड देन यू नेम योरसेल्फ ऑन द बॉक्स that this is the brand that you created with the KitKat for them. And then just you add to cart to make payment and just you wait. थोड़ी देर के बाद आप जब जाओगे तो the box will be ready, the customized box will be ready with the name of the recipient, उसके पसंद के ingredient and with your name. ये हमारे सैयद एहसान इकबाल है जो हमारी पहली बैच के एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने ये टिकटॉक हमें दिया था, which shows where the world is going. एक चीज जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है ड्यूरिंग पैंडेमिक, हम उसे कहते हैं रोड साइड इटरी. रोड साइड इटरी हम सब जानते हैं, वो हमारी फेवरेट जगहों में से. पर अगले 1 साल उन रोड साइड इटरीज पे जाने में डर लग रहा है. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इफ यू अंडरस्टैंड कि लोगों के प्रेफरेंसेस अब क्या होंगे, किस तरह की हाइजेनिक चीजें वो चाहेंगे, अपने ही हाथ का छुआ हुआ वो खाना चाहेंगे, देन दिस मे बी द perfect time to open your own pani puri shop the way it is shown in this video. I want you to see this. आप यहाँ पर एक प्लेट्स में सैनिटाइज तरीके से हाथ को धोकर रख दिया गया है. एंड नाउ द कस्टमर इज टेकिंग द पानी पूरी इन हिज हैंड एंड देयर इज अ सेंसर लेड फिलर, एक नल लगा हुआ है जिसमें आपकी पसंद का पानी है. आप अपना पानी पूरी खुद उठाइए. दिस इज द फर्स्ट टाइम द पानी पूरी इज गेटिंग टच्ड. उसको नल के नीचे रखिए, उसको भरिए और खाइए. कहाँ पानी पूरी नहीं बिक रही है पूरी दुनिया में, और कहाँ इस तरह के ठेले के बाहर लाइन लग रही है. वेयर अ पर्सन, ऑल यू हैव टू डू एज एन ओनर इज दिस, दैट यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर थिंग्स. आप उसको सैनिटाइज तरीके से भर के रख दीजिए एंड देन लेट द पीपल डू द जॉब. वो अपनी पानी पूरी उठाएं, अपने नल के नीचे लगाएं और खाएं. पानी पूरी के ठेले अब शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी पानी पूरी के ठेले शायद पूरे दुनिया में बिजनेस को बहुत ज्यादा करेंगे, इतना ज्यादा जितना रेस्टोरेंट शायद ना करता हो. आप खुद अपनी आंख को बंद करके सोचिए आप किस तरह की पानी पूरी में खाना चाहते हैं. नाउ दिस वर द लोकल एग्जांपल्स फ्रॉम आवर रोड. ये रोड के लोकल एग्जांपल है. मैंने पहले जब फार्मेसी का एग्जांपल दिखाया तो मैं नहीं चाहता था कि आपके दिल में आए कि दिस कैन ओनली हैपन इन वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब्स. नहीं, इवन चॉकलेट सेलिंग में, इवन पानी पूरी सेलिंग में भी ये नई सोच काम करती है. इवन बुक पब्लिशिंग में भी नई सोच काम करती है. बट नाउ आई वांट यू टू सी हाउ द एग्रीकल्चर विल चेंज. कैसे एग्रीकल्चर चेंज होने वाला है. सबसे पहले 23 मार्च और 11 मई का एक न्यूज है आपके स्क्रीन पे. वाटर टेबल किलर क्रॉप कहते हैं राइस को. चावल इस कदर पानी यूज करता है, इस कदर पानी यूज करता है कि चावल पूरा वाटर टेबल सुखा देता है एंड द सॉइल इज लूजिंग मॉइस्चर. इसलिए पाकिस्तान ने इस साल इंडस नदी के मुहाने पे और इंडस नदी के तट पर और इंडस नदी के बैंक्स पे पैडी कल्टीवेशन यानी राइस कल्टीवेशन को बैन कर दिया है. वो नहीं चाहता कि राइस उगे क्योंकि पानी वैसे ही पाकिस्तान में खत्म हो रहा है. उनकी लाइफलाइन का नाम इंडस है, एक रिवर है. लेकिन अब मैं आपको जो एग्रीकल्चर की तरफ ले जा रहा हूं, वहां ना तो पानी लगती है ना मिट्टी लगती है. एंड द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 600% मोर देन अवर ट्रेडिशनल फार्म्स. एंड आई वांट यू टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर. आज तक एग्रीकल्चर हम ऐसे करते थे. अरेबल लैंड कहते हैं लैंड दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. और आपको पता है ये लैंड धीरे धीरे खत्म हो रही है पूरी दुनिया से बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. सॉइल इज लूजिंग मॉइस्चर. और अब हम और जंगल नहीं काट सकते, और जंगल काट कर अपने खेतों को नहीं बढ़ा सकते. तो एक नई चीज आई है जिसके बारे में आपने सुना है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट आज और क्लियर करने वाला हूं. उसे कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग. इस वर्टिकल फार्मिंग में 3 चीजें होती हैं. 1 एकड़ के ऊपर, 1 एकड़ के ऊपर, 1 एकड़ के ऊपर ऐसे 32 रैक्स आप रख सकते हैं. तो 1 एकड़ से 32 एकड़ के बराबर क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ फिजिकल लेआउट. सेकंड रिक्वायरमेंट इज लाइटिंग. थर्ड रिक्वायरमेंट इज अ ग्रोइंग मीडियम. आई वांट टू शो यू ईच वन ऑफ देम कैसे एग्रीकल्चर चेंज होने वाला है. सो
पहले तो आप 1 एकड़ के ही खेत के ऊपर 1 2 3 या तो हॉरिजॉन्टल रख लीजिए या वर्टिकल रख लीजिए। 32 तक आप रख सकते हैं 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ से 32 एकड़ का प्रोड्यूस आप निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, इसका जो एडवांटेज है वो बड़ा शानदार है। देखिए, ये वर्टिकल फार्मिंग है। सेकंड इसका एडवांटेज है वो बड़ा शानदार है, और वो शानदार क्या है? सॉइल को पहले सनलाइट चाहिए होती थी प्लांट को फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन अब मॉडर्न रिसर्चर्स ने बताया है कि सनलाइट का सारा स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए, उसमें से 2 लाइट चाहिए, एक येलो एक ब्लू। ये पहले व्हाइट लाइट से हम करते थे एग्रीकल्चर, सूरज की रोशनी कहते थे उसको, प्रिज्म में से हमने बचपन में गुजारा था, तो ये विबग्योर नाम का स्पेक्ट्रम मिला था। ये पूरा स्पेक्ट्रम पानी को भाप बनाने के काम आता है, लेकिन इसमें से सिर्फ हम 2 उठा लें, अगर 2 लाइट उठा लें तो पानी को भाप नहीं बनाते और एग्रीकल्चर का ग्रो फास्ट होता है। इवन लाइट को बदलकर हम उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स को कम कर सकते हैं। एक ब्लू एक ऑरेंज, इनको मिलाने से एलईडी तरीके से वी कैन ग्रो द क्रॉप्स 20 टाइम्स फास्टर, और इस तरह से वो क्रॉप ग्रो होती है। आई वॉन्ट यू टू सी दिस इज द फ्यूचर ऑफ द फार्मिंग। अब मैं इसको पॉज करता हूं, आप दोनों न्यूज को कंपेयर करके देखिए। पैडी कल्टीवेशन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस इज बैंड बिकॉज द वाटर इज नॉट अवेलेबल, और यहाँ देखिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर फ्री मीडियम। सिर्फ सूरज के लाइट के स्पेक्ट्रम के साथ छेड़छाड़ करके वी कैन इंक्रीज अवर यील्ड एंड ग्रोथ बाय 600%। सिर्फ किंडल पब्लिशिंग का यूज करके वी कैन इंक्रीज अवर रॉयल्टी बाय 70%। फिर सेल्फ कस्टमाइज्ड बॉक्स का यूज करके वी कैन इंक्रीज द सेल ऑफ चॉकलेट ऑफ आवर कंपनी, या हम पानी पूरी का सेल बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। इसमें देखिए, ये इसके ना रूट्स हैं, इसमें सॉइल नहीं लगती है, इसमें सॉइल नहीं लगती है, ये रूट्स हैं, सॉइल फ्री मीडियम में ग्रो होती है। कैन यू इमेजिन? और एक चीज दिखाता हूँ, ये पानी है, इसमें आप स्प्रे करते रहिए प्लांट में और वापस ये पानी रिसाइकल होकर कलेक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ एक टाइमर लगाते हैं, पानी आता है, प्लांट्स को नर्चर करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी आता है और फिर वापस इस पंप में पानी चला जाता है। इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसका एक सेकंड वेरिएंट आता है, उसको एयरोपोनिक्स कहते हैं। एयरोपोनिक्स में सॉइल, सनलाइट, डायरेक्ट वाटर कुछ नहीं चाहिए। एयरोपोनिक्स में नासा ने बनाया था इसको फॉर मार्स। यहाँ पर ना मिस्ट स्प्रे, जैसे आपके बालों पर सलून में स्प्रे किया जाता है, वैसे प्लांट की रूट्स पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर को स्प्रे किया जाता है, एंड दिस न्यूट्रिएंट बेस्ड मिस्ट it increases the growth of the plant and reduces the usage of water by as much as 90%। वो 90% के आसपास उसको रिड्यूस करता है। एंड by using the correct combination of nutrient you can make therapeutic crops। थेराप्यूटिक क्रॉप्स क्या होती है पता है? जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, जो आपके हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करे, ऐसे न्यूट्रिएंट हम उसमें बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ऑल यू रिक्वायर इज एन एलईडी लाइट, ऑल यू रिक्वायर इज अ क्लोज फॉर्म। और ये तीसरा मेरा फेवरेट है। इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट रिच वाटर बनाने की भी जरूरत नहीं। आप एक टैंक ले लीजिए, उस टैंक में फिशेस ले लीजिए, फिशेस विल मेक द न्यूट्रिएंट वाटर फॉर यू। उस वाटर को आप प्लांट पे मिस्ट करिए, स्प्रे करिए, प्लांट विल प्यूरिफाई दैट वाटर और वो वाटर वापस गिरेगा एंड देन इट विल गो अगेन इनटू द टैंक जहां ये न्यूट्रिएंट रिच होगा। फिर प्लांट उसको प्यूरिफाई करेंगे एंड देन इट अगेन गोज बैक इनटू द टैंक। इसे कहते हैं एक्वापोनिक्स। थोड़ी सी पढ़ाई यूज करके, थोड़ा सा नॉलेज और करंट अफेयर्स को यूज करके आप यहाँ देखिए पाकिस्तान और यहाँ देखिए डेवलप्ड कंट्रीज में कितना फर्क है। आपको लगता है कि हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए खर्चा कर रहे हैं हजारों करोड़ों रुपया, 2-2 करोड़ दे रहे हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए। आपको पता है भविष्य में सबसे अच्छी पेमेंट किसकी होगी? बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी वर्टिकल फार्मिंग, एमएससी एक्वापोनिक्स, इन लोगों को घर से उठाकर ले जाया जाएगा। दैट इज द फ्यूचर टुवर्ड्स विच वी आर गोइंग। यहाँ जितने बिल्डर्स बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी बिल्डिंग्स नहीं बिक रही तो बाजू में एक शेड बनाइए, उस शेड में ये वर्टिकल फार्मिंग बनाइए और वादा करिए कि जो ये फ्लैट लेगा उसका फूड यहीं ग्रो होगा। रातों रात बिल्डिंग्स बिक जा रही हैं। क्या आप समझे मैं जो कह रहा हूँ? अगर समझे तो आगे चलने से पहले एक बार और हैंड रेस करिए सो दैट आई कैन चेंज योर माइंडसेट मोर। प्लीज आराम से सब लोग हैंड रेस करिए जिस जिसको समझ में आई है बात। दिस इज व्हाट कोई हमें बता दे
तो फिर हमसे खूबसूरत कोई नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जरा जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कोई इसे नम तो कर दे, कोई इसको डायरेक्ट तो कर दे उस तरफ, एंड देन यू सी व्हाट काइंड ऑफ कलर्स वी कैन शो। सो बाय 2025 द वर्ल्ड विल चेंज। जो जॉब्स गए हैं वो वापस नहीं आएंगे दोस्तों, बट न्यू जॉब्स विल कम। वी कॉल इट एज जॉब्स ऑफ टुमारो। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीवियस ईयर्स, जॉब क्रिएशन बहुत खत्म हो रहा है, जॉब डिस्ट्रक्शन एक्सेलरेट हो रहा है। पर जॉब क्रिएशन उनके लिए है जो उनको पता है कैसी इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो जाएंगे बाय 2025। 85 मिलियन जॉब्स चले जाएंगे, लेकिन 97 मिलियन जॉब्स उसके जगह आएंगे। और ये 97 मिलियन जॉब्स जो आएंगे, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स थ्री: ह्यूमंस, मशीन्स एंड एल्गोरिथम्स। मैंने दिखाया था फार्मेसी। पहले वो फार्मेसी जो डाटा कलेक्ट करती है वो सारी फार्मेसीज को रिप्लेस करेगी, एंड देन एक कियोस्क लेकर आएगी, वो कियोस्क उस फार्मेसी को ही रिप्लेस करेगा। इस तरह का एग्रीकल्चर दुनिया के हर एग्रीकल्चर को रिप्लेस करेगा। इस तरह की चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के हर चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग को रिप्लेस करेगी। दिस इज द वर्ल्ड टुवर्ड्स विच वी आर ग्रोइंग। हियर आर सम ऑफ द क्वालिफिकेशन दैट द पीपल आर सर्चिंग। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। किसी चीज को उस नजरिए से देखना, उसके क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, उसके एनालिसिस को समझना, उसकी गहराई में जाना। जब तक कंसेप्ट ना क्लियर हो, उस कंसेप्ट से लड़ना, इससे क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस कहते हैं। जब तक आपके पढ़ने का तरीका ऐसे नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको दिखाता हूँ किस नंबर पे आती है। ये है इमर्जिंग स्किल्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लिंक्डइन कहती है ढूंढ रही है दुनिया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, एनालिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। नीचे देखिए, अपने बच्चों को ड्राइंग बोर्ड ला के दीजिए, उनसे कहिए कि हर चैप्टर में से कोई प्रोडक्ट का आइडिया निकाल के दिखाए। और जितने बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन वाले बैठे हैं या स्कूलों के मालिक बैठे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन करते करते जो भी पढ़ोगे, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऐप। एक ऐप में कन्वर्ट करना। क्यों? 15 companies are there in the world which are not asking for degrees. आप उस कंपनी का मालिक बनिए। अब सोचिए कि आपके सामने दो लोग इंटरव्यू देने बैठे हैं, एक जिसने इंजीनियरिंग टॉप की है, दूसरा जिसने एक ऐप बनाया है जिसके 10 लाख डाउनलोड हुए हैं। आप किसको नौकरी देंगे? इंजीनियरिंग टॉपर को देंगे या एक ऐप बनाने वाले को जिसके ऐप के 10 लाख डाउनलोड हुए हैं? आप ऐप बनाने वालों को देंगे। इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। आने वाले जमाने में कंपनीज नौकरी देंगी उन इंजीनियर्स को जिनसे वो कहेगी कि कैन यू ऐड वैल्यू? क्या तुम हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हो? क्या तुम हमारी किटकैट को और ज्यादा बिकवा सकते हो? कैन यू डिसरप्ट इंडस्ट्री? क्या आप कोई ऐसा आइडिया दे सकते हो कि सिर्फ इंडस्ट्री में हमारी बिके? कैन यू बी एन इंट्राप्रेन्योर? पूछा इंट्राप्रेन्योर क्या है? एंट्रेप्रेन्योर तो सुना था, इंट्राप्रेन्योर क्या है? इंट्राप्रेन्योर उस जॉब को कहते हैं कि जो कंपनी आपको इस शर्त पे देती है कि आप इसके अंदर कुछ इनोवेशन ऐसा लाएंगे कि ये कंपनी तरक्की करने लगे। यानी आप कोई बिजनेस आइडिया या एंटरप्रेन्योरशिप लाएंगे जो उस कंपनी को आगे ले जाए। आप उस कंपनी के लिए ऐसा करें। इट्स लाइक रेंटिंग अ फ्लोर एंड गिविंग द रेंट। आप अपनी कंपनी, अपने आइडिया के लिए ऐसा करें। इट्स लाइक परचेसिंग अ फ्लोर एंड गिविंग इंस्टॉलमेंट्स। तो उस तरफ का माइंडसेट बनाइए जो साउथ कोरिया में है, जो सिंगापुर में है, जो उस बेकार से लोगों के पास है जो एक मासूम बच्चों को मार रहे हैं पैलेस्टीन में, हम उन्हें इजराइल कहते हैं। उनके पास जो स्टार्टअप माइंडसेट है, उनके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, ये है जो इकोनॉमीज को कमांड करेगा। उस वर्ल्ड की तैयारी करिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। इवन द ऑनलाइन वाइट कॉलर वर्कफोर्स, ये इसके जॉब्स भी नहीं बचने वाले। 84% ऑफ एम्प्लॉयर्स, उन्होंने फ्यूचर फिट एआई से ऐसे सॉफ्टवेयर मांगे हैं विच विल डिजिटलाइज द वर्किंग प्रोसेस। आज रात के वेबिनार को सुनने के बाद मेनी पीपल हु आर फार्मेसी ओनर हियर, मेनी पीपल हु आर रेस्टोरेंट ओनर हियर, वो भी कल सवेरे से दे वुड लाइक टू डिजिटलाइज देयर वर्किंग प्रोसेस, ताकि वो प्रोसेस तो इनिशिएट हो। देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ऑफ द रिमोट वर्क। और ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे जो
हमें ऐसा एहसास कराएंगे कि हम अलग अलग नहीं बैठे, हम सब साथ में बैठे हुए हैं। दिस इज वेयर वी आर गोइंग। मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एंड आई वांट यू टू ब्रिंग अ पेन एंड पेपर सो दैट आप वो चीज लिख ले। पहले दिखाने से पहले आई वांट टू रीड अ कोट। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, वो भी पता नहीं लिविंग बनाएगी कि नहीं, आजकल तो जॉब मिलता नहीं। बहुत अच्छा जोक है इंडिया में, इंजीनियरिंग करने के बाद समझ में आता है करना क्या है। सो फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिखाने जा रहा हूं जो आप अपने बिजनेस पे लगाओगे, देन द बिजनेस विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लेकिन आपको पहले हाथ उठा के वादा करना होगा दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। आप इस वेबिनार को जाया नहीं करोगे, आप उन प्रिंसिपल्स को लगाओगे। एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस। क्या पता अल्लाह से ये दुआ करके आया था कि पिछले एक महीने में या एक साल में जितने भी घंटे आपने गुजारे हैं उसमें ये सबसे फायदेमंद घंटा साबित हो जो आपने वो भी गुजारा हो। हियर इज द फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और कैरियर चॉइसेस। पेन एंड पेपर अगर रेडी है तो आप लिख लीजिएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो नए जमाने को चाहिए, थिंक ऑफ एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया विच इज न्यू थिंकिंग। स्कूल सबने खोली हुई है, आप एक और स्कूल मत खोलना। घबरा जाओगे, डर जाओगे, बच्चा मिलेगा नहीं। बट इफ दैट स्कूल इज टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, देन पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लाइन लगाएंगे। अ न्यू कंपनीज, न्यू रेस्टोरेंट, न्यू स्कूल, न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, न्यू आईटी फर्म, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होता है उसका न्यू थिंकिंग। आप जॉब भी कहीं करने जाओगे ना, वो भी आपसे यही कहेंगे कि कैन यू ब्रिंग सम न्यू थिंकिंग। तो सबसे पहले अपने अंदर सोच बदलिए। फिजिकल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जिस भी फिजिकल वर्ल्ड के प्रोसेस को आप देखें, सबसे पहले यहाँ हाथ रखिए और सोचिए, ब्रिंग अ न्यू थिंकिंग कि कैसे इस फिजिकल प्रोसेस को मैं वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाके फर्दर इंप्रोवाइज कर सकता हूँ। इसे कहते हैं लेट योर एडवांस वर्रिंग बिकम एडवांस थिंकिंग एंड प्लानिंग। एडवांस थिंकिंग एंड प्लानिंग। क्या मैं बुक लिखना सिखा सकता हूँ लोगों को ताकि वो अमेजन पे जाके अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सके? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रेस्टोरेंट नहीं चलने वाला, आप मुझसे लिख के लीजिए, लेकिन उसमें अगर कोई नई बात है, न्यू थिंकिंग है, देन वो ही चलने वाला है और बाकी सब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। पानी पूरी के ठेले से लेकर फार्मेसी तक से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ विल बी द न्यू थिंकिंग। सबसे पहले आपको ना अपना सोलमेट चुनना पड़ेगा, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स में से, और एक छोटी टीम बनानी पड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अमेजन, लेकिन अमेजन के मालिक की आज भी टीम इतनी छोटी है जिससे वो इंटरेक्ट करता है कि वो 2 पिज्जा में उनका पेट भर जाता है। जब ग्रुप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, यू एक्सपीरियंस कि बहुत ज्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे आइडियाज को एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं है। जब ग्रुप्स छोटे होते हैं ना, तो वो क्राउड नहीं होते, वहां एक्चुअली आइडियाज टकराते हैं। व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन ग्रो लाइक समथिंग? अपने जैसे डायनामिक लोग ढूंढ के लाइए जो सोच में दूसरी सोच रखते हो। सर अपने जैसे लाइए जो दूसरी सोच रखते हैं, उसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। इफ आई एम एन ओनर ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैं साउथ कोरिया से अपने जैसा ले आऊं, इंडिया से अपने जैसा ले आऊं, अफ्रीका से अपने जैसा ले आऊं, लैटिन अमेरिका से अपने जैसा ले आऊं, तो वो मेरी टीम टीम नहीं बनी, वो मेरे ही डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बन गए। अपने जैसे बहुत सारे वर्जन्स ले आया मैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। टीम्स में डाइवर्सिफाइड थिंकिंग लाइए, छोटी कोहेसिव टीम रखिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। जब आप अपनी स्कूल के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी दुकान के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करें, तो अपनी जैसे डायनामिक डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रखने वालों से टकराइए। आप कुछ बोलिए, कुछ उनकी सुनिए, और ट्रायल एंड एरर स्टार्ट करिए बहुत छोटे पैमाने पे। ये दूसरा रूल है दुनिया के टॉप फॉर्चून 500 कॉर्पोरेशंस का। पहला रूल है न्यू थिंकिंग, दूसरा रूल है
मेक अ स्मॉल कोहेसिव टीम विथ डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। तीसरा रूल बड़ा अच्छा है, इसको तो लिख कर अभी दीवार पे चिपका दो। ये कैरियर के लिए भी है, ये कंपनीज के लिए भी, ये बिजनेसेस के लिए भी है। All happy businesses are different. All happy companies are different. Each one earns a monopoly by solving a unique problem. बिजनेस मत खोलिए, कोई यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। प्रॉब्लम जितना बड़ा आप सॉल्व करोगे ना, उतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन और उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। सॉल्व सम यूनिक प्रॉब्लम दैट नो वन एल्स इज सॉल्विंग। एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में, कपड़े की दुकान में, कहीं जूता बेचने में, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो सिर्फ आप, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ आप यूनिकली सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं। अमेज़न करता है ऐसे, पता है कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर है अमेज़न। 10 लाख से ज्यादा टाइटल्स हैं एक बार में। और ये खास बात है अमेज़न की कि वो एक भी बुक स्टोर नहीं करता। इट्स ओनली अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रोकर बिटवीन द परचेसर्स एंड सेलर्स। अब उसने पब्लिशर्स को भी हटा दिया, डायरेक्ट राइटर्स को ले आया। राइटर्स और दुनिया के बीच में इट्स ओनली अ ब्रोकर एंड इट्स सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। जैसी भी बुक अमेज़न को मांगो, अगले दिन वो आपको डिलीवर हो जाती है, या फिर अगर अर्जेंट प्रेजेंटेशन करना है तो उसी वक्त आपके किंडल क्लाउड में वो डिलीवर हो जाती है। डोंट स्टार्ट अ कंपनी, सॉल्व अ प्रॉब्लम। जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको। केक और पेस्ट्री की दुकानें लगातार खुली हुई हैं। आप एक ऐप ले आइए जिसमें पीपल कैन डिजाइन देयर ओन बर्थडे केक। कौन से फ्लेवर डालना है, मुझे कौन कौन सी चीजों से एलर्जी है, नाम कैसे लिखना है, उस पर प्रिंट क्या करवाना है, डब्बे पे क्या प्रिंट करवाना है, कितने बजे डिलीवर करना है, टंग। द मोमेंट आई एंटर ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वो पैकेट मेरे घर के बाहर डिलीवर हो जाए। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। और हम जब बिजनेस खोलते हैं वो बंद हो जाता है, हमें डर लगता है बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योरशिप से। उसकी वजह है ऑल फेल्ड कंपनीज आर सेम because they fail to escape the competition. All failed companies are same because they fail to escape the competition. मेरे स्कूल में कोई नई बात नहीं है, मैंने एक और स्कूल खोल दी। मेरे कपड़े की दुकान में कोई नई बात नहीं है, मैंने एक और कपड़े की दुकान खोल दी। I fail to escape the competition. डेली ब्रूट स्ट्रगल बनेगा, धीरे धीरे 6 महीने साल भर में वो बंद हो जाएगा। क्या पता मैं कपड़े का एक ऐसा ऐप ले आऊं जो चांदनी चौक की सारी वेराइटी इस ऐप में दिखा दे। लेंस कार्ड की तरह मैं फ्यूचर फिट एआई से एक सॉफ्टवेयर खरीद लूं जहां लोग अपनी फोटो को अपलोड करें तो उनका कपड़ा बदल जाए और वो पहन कर देख लें, जैसे हम चश्मा पहनकर लेंस कार्ड पे देखते हैं। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। ऑल फेल्ड कंपनीज आर सेम बिकॉज दे फेल टू एस्केप द कॉम्पिटिशन। अगर बात समझ में आई तो हाथ उठाओ जरा। बात समझ में आई है तो हाथ उठाओ। हाउ टू सर्वाइव इन दिस न्यू वर्ल्ड। बात समझ में आई है, लाइफ चेंज हुई है तो हाथ उठाओ। तो अपने आप से आज रात को और कल सवेरे 3 सवाल पूछने हैं। फर्स्ट, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इन माय फील्ड इज नोबडी बिल्डिंग? व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इन माय फील्ड इज नोबडी बिल्डिंग? यहाँ पे सबसे ज्यादा गल्फ से लोग अटेंड कर रहे हैं, उनसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बस आने ही वाले हैं, ऑयल की इकोनॉमी गिरने ही वाली है, वहां इकोनॉमिक कोलैप्स होने ही वाली है, घर लौटना है। घर लौटने से पहले एक बिजनेस आइडिया निकालो, उस पर माथा पच्ची ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी करना शुरू करो, उसको डिजाइन अभी करो, सो दैट बाय द टाइम जब आपका जॉब इनसिक्योर हो तब तक एक फ्लरिशिंग बिजनेस साइड में रेडी हो। और अपने बच्चों को गिफ्ट करिए कैरियर से ज्यादा वो बिजनेस जो उनको आगे ले जाए। व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इन माय फील्ड इज नोबडी बिल्डिंग? कैन आई क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और सर्विस? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, कपड़ा है, चूड़ी है, इसको पहनाने का नया तरीका क्या मैं आपसे दे सकता हूँ? चश्मा बेचना है, क्या मैं लेंस कार्ड ला सकता हूँ? कैन आई क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू? क्या मैं कॉलेज में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा सकता हूँ? ये कहना, सब सिविल सर्विसेज की करा रहे हैं तैयारी, तो आप नया क्या कर रहे हो? लेकिन क्या मैं कॉलेज में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर ऑफ टुमारो के बारे में बता सकता हूँ?
Can I create a lot of value in an existing industry or service? And creating value is not enough. You need to capture some of the value that you create. आपको कुछ वैल्यू कैप्चर भी करना होगा. आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो आप उसको डुबा दोगे. जैसे एग्जांपल है इसका जेट एयरवेज का. ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कि ये कंपटीशन को सरवाइव ही नहीं कर पाया. ऑल फेल्ड कंपनीज आर सेम बिकॉज दे कुड नॉट एस्केप द कंपटीशन. ये कंपटीशन को एस्केप ही नहीं कर पाया. जब फ्यूल के प्राइसेस राइज हुए, बाकी लोग एयरक्राफ्ट लाइनर्स ने सस्ते में टिकट बेचना शुरू किया, जेट एयरवेज खड़ा हो गया. ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट. जेट एयरवेज कुछ नया और डिफरेंट नहीं सोच पाया, वो कंपटीशन को एस्केप नहीं कर पाया, वो खड़ा हो गया. लेकिन इसका बनिस्बत उल्टा है गूगल. इतना यूनिक मोनोपोली है, सिर्फ यही कर सकता है. Nobody can provide the competition, and it is so different that you can't imagine. ये यूनिक प्रोडक्ट है. ट्रैफिक से लेके मेडिसिन से लेकर ये एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो गया है. रेटिंग से लेकर हर चीज. That is Google. तो here comes the most important. ओ लोगों सुन लो जो मैं अगली चीज दिखाना जा रहा हूं. एस्केप द परफेक्ट कंपटीशन. वो कैरियर मत लेना, वो बिजनेस मत खोलना, वो दुकान मत डालना जिसमें परफेक्ट कंपटीशन. अगर जेट एयरवेज भी रहेगा ना तो ग्राउंड पे खड़ा हो जाएगा. कुछ ऐसा करना जो सिर्फ आप कर सकते हो. समथिंग यूनिक एंड वेरी वैल्यूएबल इन द एग्जिस्टिंग फील्ड. कुछ ऐसा करके दिखाओ जो बाकी नहीं कर सकते. उसे कहते हैं क्रिएटिव मोनोपोली. पैसा यहाँ है, शोहरत यहाँ है, रुतबा यहाँ है, आने वाला जमाना यहाँ है. ये इसके दिन चले गए दोस्तों, इसके दिन चले गए. मेरे घर से थोड़े दूर पे एक चिकन फ्राई की दुकान है, पर मुझे वो लजीज खाना है जो घर से बहुत दूर है. मैं इस दुकान पे नहीं जाता हूं, स्विगी और जोमेटो से उसको ऑर्डर करता हूं. Escape the perfect competition. Be like Swiggy, Zomato. Bring something unique and valuable that only you can do it. That creative monopoly takes the society forward. वो हमें आगे ले जाती है. एक और डोसे की दुकान, एक और डोसे की दुकान, एक और डोसे की दुकान. इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन. मेरा सांबर अच्छा है जी, ट्रिवियल डिफरेंस है. अगर अच्छा है तो कोई कॉपी कर लेगा. दिस इज नॉट गुड बिजनेस. इसको छोड़ दो. यहां देखो अमेज़न, कोई कॉपी नहीं कर सकता. कोई कॉपी नहीं कर सकता. हमारे नुक्कड़ का बनिया इनकी पेंट्री को कॉपी नहीं कर सकता. गूगल, एप्पल, फेसबुक इतना बेटर है, ये इतना यूनिक है that nobody can give any competition. So here is something very important tonight. Undifferentiated homogeneous products, companies और carriers में पैर मत रखना. None of them have any market power. अंदर जाओगे तो दाम कम करना पड़ेगा बेचने के लिए. It's a cut throat pricing. 1-1.5 साल में वो बंद हो जाएगी. एंड थोड़ा भी प्रॉफिट होगा ना तो और भी लोग आएंगे और फिर वो बंद हो जाएगी. Escape the intense competition. Never open a business in which already there are abundance of choices. In which already there are abundance of choices. In the long run, you will not make a profit. वो बंद हो जाएगा. And money is everything for survival. Otherwise, you will be indulged in a brute survival for struggle. अब आओ creative monopoly की तरफ. They innovate their way to the top. वो ऐसी कोई चीज करते हैं जो बाकी लोग कॉपी नहीं कर पाते. They are so good in what they do that no one else can even offer a close substitute. They are far ahead, far superior. They don't have to think about the money. They can only think about further innovation. And they invest a big part in R&D. स्कूलों में एक बजट नहीं है. हमारी स्कूल के ओनर्स यहाँ बैठे हैं, बजट नहीं है फॉर R&D. Can you imagine? They give customers more choices by adding a new category of abundance. Creative monopolies are the future. हैदराबाद के चूड़ी बाजार को देखिए, भीड़ है लेकिन इस कदर दुकानें हैं that you will not survive this competition. You will fail to escape the competition. एक ऐप बिल्ड करिए जो कलाई ऐसे पकड़ने पर चूड़ी दिखाता हो और हमसे मैचिंग चूड़ी एक दिन में डिलीवर करवा दीजिए. Now you are ruling. क्या पता साल खत्म होने से पहले पहले आप करोड़पति बन जाए. Because that is what is called as creative monopoly.
क्रिएटिव मोनोपोली लाइए अपने अंदर, जैसे स्टीव जॉब्स इस वीडियो में ला रहे हैं। आपको मैं सिर्फ एक लाइन दिखाना चाहता हूँ, देखिए कैसे दुनिया डिसरप्ट And what होती है। happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? वो कह रहे हैं कि हम मोबाइल में एक और बटन नहीं लगा सकते, बटन्स ऑलरेडी लगी हुई है। सो व्हाट डू यू डू? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. A giant screen. A giant screen. Let's get rid of the button. Apple became patented giant screen. पूरी दुनिया एप्पल की झोली में गिर गई। आप भी अपने व्यवसाय में से, बिजनेस में से, पुश्तैनी काम में से वो बटन्स हटाइए जो सबके पास है। यू कांट ऐड अनदर बटन। सांबर में कोई 2 मिर्ची 2 मसाले और ऐड करने से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू डिसरप्ट। सांबर का घोल पैकेजिंग में बेचिए ताकि जब पानी में उसको मिला के उबाला जाए तो वो टेस्ट आए जो साउथ इंडिया में आता है। ये स्टीव जॉब्स हमको समझा रहे हैं, सुनिए। Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to? We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. Yeah. ये है वो नियम जिससे इनके पास लॉकडाउन में $11,000 पर सेकंड आता। न्यू थिंकिंग, क्रिएटिव मोनोपोली, डिफरेंशिएशन। Creative monopolies, they break the predecessors monopoly. एक चूड़ी का ऐप आएगा ना, वो डिसरप्ट कर देगा पूरे चूड़ी बाजार को, पूरे को डिसरप्ट कर देगा उठा के। ये और गरीब हो जाएंगे। इनका सेंसस में नाम आएगा मोस्ट इम्पोवरिश्ड कम्युनिटीज में, उनका नाम आएगा फॉर वर्ल्ड्स टॉप MNCs में, बिकॉज दे कीप इनोवेटिंग, दे कीप डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनका ना ग्रोथ वाला माइंडसेट है, उनका स्टैग्नेंट माइंडसेट नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 में एक नया नियम और है, ध्यान से सुनना। कोई भी आइडिया जब आपके दिमाग में आए तो उससे एक सवाल पूछिए, हाउ विल दिस आइडिया अनफोल्ड 6 years फ्रॉम नाउ? आज से 6-7 साल बाद इस कैरियर, इस आइडिया, इस दुकान, इस बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा? फ्रॉम 6 years फ्रॉम नाउ कैन आई सस्टेन इट? बिकॉज एक नया नियम आया दुनिया में। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 में $133 मिलियन बनाए थे। 2012 में ट्विटर लॉस्ट मनी। आज न्यूयॉर्क टाइम्स स्टैग्नेंट हो गया है एंड ट्विटर इज मेकिंग 33.01 बिलियन। अपने आइडिया से पूछिए, अपनी शॉप से पूछिए, अपने बिजनेस से पूछिए, अपने रेस्टोरेंट से पूछिए। Simply stated, the value of business today is the sum of all the money it will make in the future. चोरी की दुकान खोलने से पहले सोचिए, आज से 6-7 साल बाद, how much money am I going to make from this shop? स्कूल खोलने से पहले सोचिए कि 6-7 साल बाद जिस आइडिया के तहत ये स्कूल खोला गया है, क्या इसका फ्यूचर बढ़ेगा कि घटेगा? ट्विटर का फ्यूचर बढ़ेगा, एप्पल का फ्यूचर बढ़ेगा। हमारे ट्रिवियल डिफरेंसेस, होमोजीनियस खोली हुई स्कूल का फ्यूचर घटेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस स्टोरी को चलाया और लिखा कि ट्विटर बचा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा, ट्विटर विल एंड्योर, जबकि ट्विटर वाज नॉट मेकिंग मनी। नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट जब भी खुलते हैं, लोगों की भीड़ आती है। सक्सेसफुल, दे कलेक्ट हेल्दी अमाउंट्स टुडे बट देयर कैश फ्लोज विल ड्विंडल। पर लिंक्डइन जितना आगे जाएगा उसमें बिलियंस उतने ऐड होते जाएंगे। That is how you have to work.
And is there, last rule hai, is there something proprietary that only you can do it and nobody else in this world can do it? And it's very hard to copy, extremely hard to copy what you are doing. If the answer is yes, then the things are going to change. और क्या ये गूगल एप्पल के लिए ही है सर? नहीं, नारियल पानी की एक शॉप के लिए भी है. ये नारियल पानी की एक शॉप है जो पोस्ट पैंडेमिक, ये गूगल, एप्पल, अमेज़न के नियम है जो आप नारियल पानी को लगा सकते हो. पोस्ट पैंडेमिक नारियल पानी पीना भी है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, और नहीं भी पी सकते, अनहाइजेनिक है. तो ये एक नई मशीन आई है, देखिए, आप नारियल को साफ करिए, ये प्रोप्राइटरी हो गया, nobody else can do it. What you are offering is 10 times better than even the close substitute. इसका फ्यूचर क्या है? जैसे 6 साल जाएंगे, देखिए अब इसने क्या किया, इसके अंदर कोई चीज डाल दी, नारियल लग गया. अब ये इसको उठाकर यहां रखेंगे फिल्टर के ऊपर, और जैसे फिल्टर के ऊपर इस नारियल को रखेंगे, ये भी हमारे एहसान इकबाल भाई ने इसको किया था, हमारी रिसर्च टीम के. आप इस पानी को यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, नारियल पानी को. पोस्ट पैंडेमिक इतना हाइजेनिक पानी कौन नहीं पीना चाहेगा, आप ये बताइए. और इसके अंदर कुछ नहीं है, नारियल को सिर्फ उल्टा किया है और बस वो पानी वहां भरा है. आप देखिए कैसे, nobody is even touching your coconut. बस ये पानी है जो फिल्टर होके आपके नल में आ गया. और इतना ही नहीं है, इसको आप कोल्ड कॉफी की तरह पी चुके तो आपका नारियल दे दीजिए, इसको काट के अंदर से मलाई निकाली जाएगी और ये मलाई इसमें रख दी जाएगी. सब कुछ 50 रुपये में. आम नारियल 45 का है, ये 50 का है. Will it make money in the future? Absolutely. Does it has a business 6 years from now? Yes. Will it endure the future? Yes. Is it proprietary? Yes. Is it unique thinking? Yes. Is it disruption? Yes. Is it monopoly? Yes. चेंज को समझिए, डरिए मत इससे, भागिए मत इससे. जितने नियम आज बताए ना, ऐसे 600 नियम है. एक और बताता हूं, स्टार्ट स्मॉल एंड देन डोमिनेट. स्टार्ट स्मॉल, मोनोपोलाइज एंड देन कॉपी इट. पहले दिन ये मत सोचो मैं क्या करूंगा, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाने में महारत ले आओ. हमारे मैथ्स के बच्चे मैथ्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेते. उसके बाद स्टार्ट एडिंग कैटेगरी आफ्टर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स. This is how the new thinking is. 600 प्रिंसिपल्स हैं ऐसे, नए एज के मार्केटिंग के, नए एज में सोचने के, नए एज में ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, नए एज में पढ़ाई करने के, नए एज में अपने कंटेंट को दोबारा सजाने के. 600 से ज्यादा प्रिंसिपल्स. बुक्स हैं, उनकी समरी का पॉडकास्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं. लेकिन लाइव क्लास की एक बहुत खूबसूरत बात है, 16 कंट्री से 58 लोग बैठते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना, उनके सामने अपने आइडिया को पिच करना. हर क्लास के बाद 20 मिनट अपना आइडिया पिच करना है. और अगर आपका आइडिया कंपेलिंग है तो वो 98 और इस बैच के 150 लोग, 250 लोग आपके आइडिया में 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप उन्हें मजबूर कर दें, इतना अच्छा आइडिया है कि 5000 वो देने को तैयार हो जाएं, दैट्स द अपर मोस्ट लिमिट, उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने. तो 18,75,000 से 12,75,000 रुपये तक वही सीड मनी मिलता है टू ओपन अवर ओन ऑर्गेनाइजेशन. हमारा पहला बैच पूरा हुआ, उसके अलुमनाई ने ही हमारे बैच के सेकंड बैच के भी एडमिशंस करवा दिए. 15,000 का ये कोर्स है. लेकिन हमारे अलुमनाई के वजह से we have reduced the prices for next 2 days. 8,900, 40% का इस पे डिस्काउंट है फॉर नेक्स्ट 47 सीट्स, क्योंकि बाकी सीट्स का एडमिशन हो चुका है, वो भर चुकी है. 47 सीट्स आर लेफ्ट. Sit with us for next 2 months and see the change in your life for all this. थोड़ा रुक कर, सोच कर, समझ कर देखिए कि कैसे वर्ल्ड चेंज होता है. और उनके साथ मिलिए जो ये ऑलरेडी कर चुके हैं. वो पिचिंग के दिन आपके साथ बैठेंगे, और जो आपके साथ नए लोग हैं
जिसके एडमिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं वर्ल्ड के, अब आप 47 सीट्स के लिए ये वेबिनार हमने किया इस रात को। एंड 8900 डिस्काउंट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। वो जैसे ही खत्म होगा, वी विल बी अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। फिर जिंदगी भर हमें अपना आइडिया तैयार करना है, अलिफ के सामने उसको पिच करना है, सो दैट पीपल फील कंपेल्ड टू इन्वेस्ट एंड वी स्टार्ट अवर आइडिया, अवर बिजनेस, अवर स्कूल, अवर रेस्टोरेंट, our career in such way that we become the job providers, not the job takers. आपके साथ एमबीबीएस डॉक्टर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, प्रोफेशनल होंगे, सिर्फ इंडिया से नहीं होंगे, कनाडा से लेके पाकिस्तान से लेके इवन ऑस्ट्रेलिया से लेके सब कोई इंडिया आएगा आपके साथ बैठकर उन प्रिंसिपल्स को पढ़ने, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करने। मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोलता हूँ, दिस इज वन लाइफ टाइम चांस, क्योंकि हमारे अलुमनाई ने उसको सब्सिडाइज किया है। एक कोड है स्टार्टअप B2 करके, जो अभी हमारे चेयरमैन आपको बताएंगे, स्टार्टअप B2। मैं चाहता हूं कि इकराम भाई उसको लिख दें। alif.org पे जाइए, स्टार्टअप B2 का कूपन डालिए एंड गेट अ रिडक्शन फॉर द नेक्स्ट 47 सीट्स। Immediately the recorded lectures will be given for this week, and 2 live classes with the world people where you can interact, you can speak, you can brainstorm, you can tell about your idea will happen on Fridays and Saturdays. वो जुमा और सैटरडे को होगी, where we will sit along with the world. I would like to end myself here, लेकिन रहीम भाई से सुनकर जाइए। और एक ऐसा कैरियर काउंसलर जो रियल लाइफ में 40,000 लोगों को गाइड कर रहा है टुवर्ड्स अ न्यू एज इकोनॉमी, मोहिउद्दीन एमकेएस साहब, उनकी भी 5 मिनट सुन के जाइए। कुवैत में ही इज गाइडिंग मोर देन 40,000 पीपल टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आई रिकमेंड यू, उनका 5 मिनट सुनिए एंड लेट रहीम भाई टेक ओवर फ्रॉम हियर। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस मच। Jazakallah khair. Thank you so much, Samir Bhai. MashaAllah. Excellent lecture and eye-opening lecture as usual. I would like to now request our chief guest, Janab Mohiuddin MKS, to come up and share his experience. Jaise Samir Bhai ne bataya, he is already leading a large team in Kuwait. And before that also, in his professional life, he has had a lot of experience working with ONGC in India and now with the Kuwait Oil Company. Apart from that, as I said, he has got a lot of charitable and philanthropic interests. So, Janab Mohiuddin MKS Saab, could we request you to please come up and share your thoughts within 5 minutes, please? Hamare chief guest, Janab Mohiuddin MKS Saab. Assalamu alaikum. Dear brothers and sisters, and the main speaker of the day, Mr. Samir and Mr. Abdul Rahim. Indeed, it's an honor for me to be with you, to interact with you on this very good session. In fact, Mr. Abdul Rahim and Mr. Samir has spoken a lot about me, but again, I'm a small person. I'm not that big. I'm a simple and small personality. Of course, I'm associated with many NGOs. I'm trying to add value through my social organizations, alhamdulillah. In fact, I'm a fan of Mr. Samir, and he is a very good speaker. And in fact, why I like him basically is he speaks with his heart and with a lot of passion, commitment, and emphasize on the topic. That's the greatness of Mr. Samir, really. So that's the reason I like it. And that it's really a great topic. And I myself made a note of so many issues, and it is an amazing session, and with a lot of challenging messages and great messages and inspiring messages with a lot of good ideas also. He's a man with the figures. Basically, that during the last 1 hour, 15 minutes, continuously he was giving shock to us with several information, a lot of information with a lot of figures. And he's a man with amazing ideas. I really I feel proud to have such people in our society. What I would like to say basically is, there is a famous quote, nothing worthwhile ever happens easily and quickly.
you achieve only when you are determined to achieve. So in order to fulfill our dreams, in order to come up to the expectations, you need to be passionate, committed, and very much determined. Otherwise, you cannot achieve all those things. That will be in your wish list only. So the information, whatever was shared by Mr. Samir, is really amazing. And we need to think a lot to capture all those ideas. I would like to request all of you to sit for a while and think and grab those opportunities. And it is a really an amazing opportunity for all of us. And even I am also thinking of taking this opportunity as a challenge. As you know that COVID-19 has basically resulted in loss of many jobs and of course the lives also. And as per the information shared by Mr. Samir, and even as per the studies, it appears that several more millions of people are going to lose jobs in the days to come. But again, on the other end, this same pandemic has opened the doors for all of us, and it has given like an opportunity for all of us to be in line with the technologies and learn the new technologies. And of course, as per the information shared by Mr. Samir, again, there are many things going to come in the days to come. And what I would like to say is, it is the time for all of us to think and adapt to those new technologies and guide our children and brothers and sisters to make use of these new opportunities for our better future. Otherwise, we will not be in a position to survive in the current challenging atmosphere. And as you already heard, 85 million jobs will be displaced, as Samir has shared. But again, on the other end, again, he also shared that 97 million jobs will emerge. But again, those are only for the people, those who have the new skills and the technologies. So we need to grab those new opportunities and the technologies, and we need to be ready to take the challenges. So while concluding, my just small speech, what I would like to say is basically people forget how fast you did the job, but again, often they remember how good you did the job. So it is the time for us to adopt new challenges and again come up to the expectations. And please make use of these challenges. And in the end, I also would like to take this opportunity to thank ALIFS team, more importantly, the speaker of the day, Mr. Samir, and for his passion and commitment, whatever he has to help the brothers and take us to the new strides. So what I would like to say is, for a resolute and determined, always there is a time and opportunity. Make use of these opportunities. All the best. Keep going. May Allah bless all of us with the right path and guidance. Thank you very much. Jazakallah khair, Muhyiddin Saab. Thank you so much for your words of wisdom and advice. And we hope all of us benefit from that. As I think it has been mentioned by Samir Sahab, the special offer for the participants is available only for the next 48 hours. That means until Tuesday midnight. You can use the code that is given in the chat. It has also been emailed to all of you. You can use that code and you can join this course at a discounted rate. Otherwise, the first live session is starting on Friday, 4th of June. The recorded sessions will be shared immediately and the live session will be there on 4th of June. I think I started off with the image of Burj Al Khalifa and the eagle flying from there. Today, it is your chance to fly from your comfort zone into the newer world that is now emerging. And if you ever wondered how and when you should start doing your business, welcome to this Startup Nation course. You will get a perspective of the entire business literature around you and also the changing world of business for the future. It will equip you with all perspectives to be able to start your new entrepreneurial venture. We look forward to see you in the course. Thank you and Jazakallah khair for being here today. We hope you have a good night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.